Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So today we are doing the combined geoscientist paper prelims 2025 paper. So in this paper we are done with the first episode, and this is the second episode of the series. We will try to finish this whole paper in 3 classes. And as I told you in the first session, the whole the that is numericals and whole this physics question we will do at the end, and we are done with the question number 60. Let's move toward the 61st question. So before starting this session, let me tell you about our free initiative, that is Mark Dasak mentorship support, that will give you an ace in your examination, because you don't if you know that this exam is not just about the knowledge, it's about approach, it's about right guidance, है ना? Right guidance will make you to lead toward the success. You may do hard work, you can read for 12 hours, you can sit for 12 hours and read, but without direction, that is in vain. But if you have right direction and you are studying for 8 hours, 9 hours, that is enough for your examination. You don't need to just rushing towards this examination. You can just go in the normal pace and clear this examination effectively. So I hope that you will show your interest towards this free initiative, है ना? And fill that Google form so that you will get a seat, you will get a chance to talk to me personally. I will call you and personally guide you for your examination. Okay, so let's move toward the question number 61. 61 says the Deccan Riot of 1875 Deccan Riots of 1875 were peasant rebellions against which one of the following classes? कौन सी classes के against peasant rebellions थे? So ये basically money lenders और साहूकार के against थे, क्योंकि जैसे जैसे वो taxations बढ़ा रहे थे, exploitation बढ़ रहा था farmers का, peasants का, है ना? तो ये money lenders के खिलाफ थे. ये एक riot नहीं था, ये काफ़ी एक series of riots थी. Okay. So question number 60 second says the Salt March was first nationalist activity in which women participated in their large numbers. Who among the following was instrumental in persuading Mahatma Gandhi not to restrict the protest to the women alone? यानी कि women's men alone, यानी कि women's के participation के regarding ये गांधी को कि परस्यूट किसने किया था? वो आई थिंक कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था. ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. वी हैव सीन दिस कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बार वेटेज डाउन हुआ था, बट इन दिस टाइम द वेटेज इज इंक्रीजिंग. ओके, questions are increasing in the numbers. Okay, 63rd says who among the following commanders were not tried in the INA trials in the Red Fort? So this question was repeated from the CSC, that is CSC prelims examination, and you may find here only. So basically 3 को एग्जीक्यूट किया था, है ना? फर्स्ट इज PK Sehgal, सेकंड इज GS Dillon, थर्ड इज शाह नवाज खान. सो मोहन सिंह इज ए कैप्टन. ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू ये INA, बट ही वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड, है ना? ये कुछ इनिशियल लीडर्स में था सुभाष चंद्र बोस के साथ. ओके, सुभाष चंद्र बोस के साथ. ओके, सो 64 says which one of the following pair of organizations and their founders do not correctly match? कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा? तो यहाँ पे फर्स्ट इज ब्रिटिश नेशनल एसोसिएशन, ये राधाकांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, ये वाला सही है, हाँ इन्होंने बनाया था. सेकंड इज इंडिया लेक, ये शिशिर कुमार घोष ने बनाया था. ओके, थर्ड इज बॉम्बे एसोसिएशन, नहीं इन्होंने नहीं बनाया था. फोर्थ इज इंडियन एसोसिएशन, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था. ओके, सो ये बॉम्बे एसोसिएशन शायद जगन्नाथ सेठ कुछ ऐसे बनाया था इन्होंने, है ना? मतलब कि इन्होंने नहीं बनाया था. सो हियर यू विल फाइंड कि ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन हियर. ओके, 64th क्वेश्चन सेज वही कॉन्सेप्ट है ना? पहले जस्ट टिक द आंसर, है ना? फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं. वीर सेव मूवमेंट्स था, जो कि मतलब कि एक मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है. ओके, सो द वीर सेव मूवमेंट वॉज लेड बाय बासवाना के द्वारा ही लेड किया गया था. ओके, सेकेंड इज वीर सेव वर्शिप्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज द लिंगा. यस, डेफिनेटली. वचन्स composed in Kannada are the main composition of the understanding of Veer Sev tradition. Definitely correct. So यहाँ पे हुआ ना, you found 3 questions जिनमें 2 करेक्ट हुए इसी कॉन्सेप्ट पे और 1 इनकरेक्ट हुआ है ना?
सो आप देख लो कि कॉस्ट बेनिफिट किस में ज़्यादा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेव राय? कृष्णदेव राय के द्वारा कौन सा कृष्णदेव के राय के द्वारा कौन सा टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया? तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ ना, अपने नाम पे टेम्पल कौन कंस्ट्रक्ट करता है? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली हो गया। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगा लिया तो आप उसमें डायरेक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे। सो हजारा रामा टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल, ये दो कंस्ट्रक्ट किए गए थे कृष्णदेव राय के द्वारा। ओके, सो यहाँ पे अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 says who among the following अष्टप्रधान है of Shivaji who among the following did not hold any military commands besides civil duties? कौन सा है जो मिलिट्री कमांड्स नहीं संभालता था? पहला पेशवा तो थे, पेशवा बाजीराव पेशवा सुना होगा ना आपने। सेकंड इज अमात्याज इज बेसिकली मिनिस्टर्स, यस डेफिनेटली दे आर पार्ट ऑफ, दे हैव द कमांड ओवर द मिलिट्री, है ना। सुमंताज को भी होती है, मिलिट्री कमांड्स रखनी पड़ती है उनको भी, बट पंडित आर जस्ट फॉर द पूजा पाठ। सो ये वाले मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बैटल ऑफ चिनहाट वॉज फोर्ट बिटवीन, किन के बीच में हुई थी बैटल ऑफ चिनहाट? ये बेसिकली हुई थी ये ब्रिटिश फोर्स और रिबेलियन शायद हजरत महल के आसपास हुई थी। आई डोंट नो रिमेंबर द करेक्ट, बट आई थिंक यस दिस वाज रिलेटेड टू 1987 रिबेलियन वेयर वन ऑफ द रिबेल फाइट विद द ब्रिटिशर्स इन चिनहाट, है ना। Okay, so option C will be the correct option. So question number 69 says who among the following is the most frequently evoked god in the Rig Veda? ऋग वेदा में से सबसे ज्यादा इवोक किसको किया गया था? ये है इंद्रा को। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आते हैं तो करो वरना छोड़ो, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 says which one of the following pair of भक्ति poets and their work is not correctly matched? कौन सा है जो भक्ति पोइट और उनका पेयर वो करेक्टली मैच हो नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर ये हो गया भावरत दीपिका, है ना, एंड जयदेवा गीता गोविंद, एकनाथ भावरत रामायण एंड तुलसीदास अदेत्मा रामायण। नहीं, तुलसीदास को तो आपने सुना होगा ना, रामचरितमानस लिखी थी, रामचरितमानस। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये रामचरितमानस होगी, है ना। So let's move toward the 71st question that says which one of the following about the sexual harassment of women in the workplace prohibition and redressal act of 1813 is correct? कौन सा correct है ना? It is based on the guidelines emerged from the Visakha judgment of Supreme Court in 1993. Yes, definitely correct है ये वाला। Second says as per the act it is mandatory for an employer to even with the 2 employees to form the internal committee. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि पहला था जनरलाइज है, बेस्ड ऑन द गाइडेंस इमर्जिंग फ्रॉम द विशाखा कोर्ट जज। ओके, सो ये तो जनरल स्टेटमेंट है ना। कौन से मतलब कि हाँ कोई से मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि कोई सा भी दे दोगे, नहीं, उन्होंने कुछ दिया है तो सही दिया होगा, है ना। सो एज पर द एक्ट इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर इवन विद द 2 employees टू फॉर्म द एन इंटरनल कमिटी इन द वर्क प्लेस। सो यहाँ पे 2 नहीं होगा, बेसिकली 10 होगा, मतलब कि 10 लोगों की हो ना तो इंटरनल कमेटी बनानी पड़ती है। थर्ड इज विशाखा इज द नेम ऑफ द वुमेन कंप्लेनेंट हु फील्ड द केस। नहीं, ये एनजीओ था, है ना, नॉट वुमेन कंप्लेन, इट्स एनजीओ, है ना। सो ये बेसिकली रिलेटेड टू वन ऑफ द वुमेन फ्रॉम राजस्थान, आई थिंक बनवारी देवी कुछ ऐसे नाम था, है ना। सो उनका क्या हुआ था ना कि शी वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। सो उनका हुआ था कि उन्होंने एक मतलब कि कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन था विलेज का, तो उसके मतलब कि वो चाइल्ड मैरिज हो रहा था, उसने रोक दिया, कंप्लेन कर दी। देन आफ्टर दैट, है ना, बाहुबली आए उनके, तो उनके मतलब हस्बैंड के सामने उनके साथ मतलब शायद आई थिंक गैंग रेप कुछ ऐसे हुआ था। उसके बाद में ये हुआ था, बाद में विशाखा गाइडलाइंस वगैरह आई थी। ओके, so that is the brief ground and fundamental. You have to read about it carefully. Okay, question number 73rd says with reference to article 16 of the constitution of India which one of the following statement is correct? कौन सा correct है? Nothing in the article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment and or the post in the favor of any backward class of the citizens. Yes, correct है। कुछ भी है जो कुछ भी नहीं है जो प्रिवेंट कर पाए, सभी उसको मोटिवेट ही करते हैं। ओके, सेकंड सेज द स्टेट कैन डिनाई ए वीमेन टू अपॉइंट एज ए डॉक्टर इन द आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑन द अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी। नहीं, प्रेगनेंसी कोई तो वो नेचुरल है, उसमें तो कोई मतलब कि
डेफिशिएंसी है ही नहीं ना, तो इसमें मना नहीं कर सकते. थर्ड इज क्रीमी लेयर अमंग द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स आर डिटरमाइंड बाई इनकम क्राइटेरिया ओनली. ओनली तो नहीं है इसमें, वो वेल्थ हो गई, फिर सोशल स्टेटस हो गया, फिर है ना एजुकेशन हो गई, तो इस हिसाब से होता है. ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. Question number 73 says which one of the following when the president of India is impeached for the violation of constitution, the charge shall be preferred by किसके साथ, किसके द्वारा प्रीफर्ड किया जाता है. ये बोथ आइदर कोई सा भी हाउस इसको इनिशिएट कर सकता है, आइदर हाउस ऑफ द मतलब कि पार्लियामेंट इसको इनिशिएट कर सकते हैं. ओके, विद द प्रीफर गाइडलाइंस 14 days एडवांस नोटिस देना पड़ता है, प्लस है ना. Question number 74 says the Vice President of India, who is also the ex officio chairman of the Council of States, is elected by the members of the an electoral college consist of the members of, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के मतलब इलेक्शन में कौन पार्ट लेते हैं. सो ये बेसिकली बोथ मतलब कि बोथ हाउस के जो जितने में मेंबर्स हो ना इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वो पार्ट होते हैं ना. सो बोथ हाउसेज यहाँ पे ये स्टेट्स का कोई काम नहीं है, ओनली राज्यसभा भी नहीं है, दोनों होगी राज्यसभा प्लस लोकसभा. ओके, सो 75 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्री इज द चेयर ऑफ G20 फॉर द ईयर 2025. तो ये बेसिकली साउथ अफ्रीका होगा, है ना. साउथ अफ्रीका को भी G20 जब इंडिया में हुआ था तभी साउथ है ना, नॉट साउथ अफ्रीका को उस टाइम पे इंक्लूड नहीं किया गया था, है ना. तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 76 सेज the Constitution 106th Amendment Act 2023 reserve 1/3 of all the seats of women in various legislatures. For how many years will this reservation available under this act? So ये basically 15 years के लिए होता है इनिशियली, जैसे कि जो पहले भी हुआ था ना, जो रिजर्वेशन हुए थे ये SC/ST के लिए, तो ये भी 15 years के लिए हुआ था. प्लस जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ना उसको भी 15 years के लिए किया था स्टार्टिंग में, बट देन एक्सटेंड इट फर्दर. ओके, सो ऑप्शन C will be the correct option. 77th question says which of the following statement about money bill is correct. money bill के बारे में कौन सा करेक्ट है. money bill passed by the Lok Sabha shall be returned by the Rajya Sabha within 14 days with its recommendation. Okay, question number option 1 में doubt है, not we can't say it's correct or incorrect, doubt है. second says the Lok Sabha shall agree to recommendation of Rajya Sabha on the money bill to consider it passed by both the houses. नहीं, जरूरी तो नहीं है, not mandatory to accept the recommendation, है ना. थर्ड says the finance minister has absolute powers to pass. नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर के पास absolute powers नहीं होती है पास करने की. ओके, सो ऑप्शन सो यहाँ पे आप देख लो ये सारे गलत हो गए. यहाँ पे सिर्फ एक ही चांस है, वो ये होगा, है ना. यहाँ पे भी मतलब कि नोट इन ए क्लियर और विजिबल लैंग्वेज में नहीं है, थोड़ा मतलब डाउटफुल केसेस ही होते हैं ऐसे, है ना. ये ड्रॉप करने वाले क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो 78 क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरलैंड. नहीं, आयरलैंड से नहीं है ये, तो बेसिकली आयरलैंड से तो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, second is the fundamental duties were incorporated in the constitution of India upon the recommendation of the Swan Singh committee. Yes, definitely fundamental duties को इसी के द्वारा बनाया लाया गया था. ओके, थर्ड इज द पार्ट 4A में है ना. सो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसिएबल थ्रू द रीट्स. नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल नहीं है. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 79 सेज which one of the following statement about the directive principle of the state policy is correct. कौन सा correct है. it is not enforceable in the any court. okay, definitely first is correct. second is it is enforceable by the court. enforceable नहीं है किसी भी condition में. it is envision a social order where inequality of the income are minimized. okay, ये वाला भी correct है. फोर्थ सेज द इट स्ट्राइव्ड फॉर इक्वल पेज. ओके, ये वाला भी करेक्ट है, इक्वल पेज. सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के वाइज मतलब कि जब देखोगे ना, नोट करेक्ट पूछा है हमें. सो नोट करेक्ट कौन सा होगा. नोट करेक्ट एक ही होगा, ऑप्शन बी. सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर, है ना. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 80 says the election commission of India hold election for the parliament of India, the state legislature and the post of the president and vice president. Definitely first is correct. second what says the parliament, state assembly, state council. No,
ये वाला नहीं होगा इसमें, जो ओनली आ गया ना, प्रेसिडेंट वगैरह कहाँ जाएंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी तो इलेक्शन कमीशन ही कराता है। थर्ड इज पार्लियामेंट ओनली, नो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नो, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। 81 says which one of the following article of the constitution of india provide for the mandate for implication of the uniform civil code, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 44 है, डीपीएसपी का पार्ट है। और यूनिफॉर्म यूसीसी बेसिकली गोवा में जो क्रिश्चियन लॉज है उनके अकॉर्डिंग चल रहा था, मतलब कि गोवा में तो मानते हैं कि हाँ सेम ही था इसके यूसीसी के। और नाउ रिसेंटली रिजोल्यूशन इज पास्ड इन आई थिंक इन उत्तराखंड ऑल्सो, है ना। सो उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 82nd says the Padmaja Naidu Geological Park is situated in which one of the following state, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था ना, रेड पांडाज को लाया गया था, दो आई थिंक नॉट रिमेंबर द करेक्ट नंबर, सो रेड पांडाज को लाया गया था बाहर से, मतलब कि कुछ अब्रोड से लाया गया था दूसरी कंट्री से, है ना। यहाँ पे रिहेबिटेट किया था उनको। सो 83rd क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा करेक्ट है ना। फर्स्ट सेज पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट म्यूनसिपैलिटीज, यस डेफिनेटली फर्स्ट इज करेक्ट हो गया ना। सेकंड से 9B ऑफ द, नहीं ये वाला नहीं होगा, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पार्ट 16 ओके नहीं, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। 84 says Epico movement for protecting the trees by hugging them बिगन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो बेसिकली ये कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, राजस्थान में था वो चिपको मूवमेंट था, जो कि जोधपुर की बिश्नोई कम्युनिटीज़ थी ना, वहाँ की जो मतलब कि फीमेल्स ने किया था, आई थिंक अमृता देवी ने स्टार्ट किया था, मतलब कि इसी विथ हर डॉटर्स हग, मतलब कि है ना उन्होंने हक कर लिया था पेड़ को, फिर जो महाराजा थे उनके लोगों ने उनको काट दिया था, आई थिंक मोर देन 250 पीपल्स डाई, मतलब कि कटेड विद द ट्रीज, ओके। क्वेश्चन नंबर 85 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ अबाउट द डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे पहले सी लगाओ फिर पढ़ो। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान is inspired by USSR. Okay, first is correct. Second, the planning commission was established in year 1950. Second is also correct. हाँ 1950 में हुआ था. The 5-year plans were supposed to provide the basis for the perspective plan. Okay, definitely basic provide कर रहे थे, है ना. Option C will be the correct, है ना. 86 says the specific name of the mango is Mangifera indica, है ना. The word indica stands for which one of the following? So basically ये होता है specific epiphyte होता है, मतलब कि जो species से related जो होता है ना specifics उनके relating होता है ना. बेसिकली ये है ना फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाद में स्मॉल्स होते हैं, मतलब देयर इज रूल्स रिगार्डिंग द राइटिंग पोर्शन ऑल्सो. सो 87 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिराइवर ओ इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ explaining the cohesion tension in transpiration pool model of the water transport in the plants. सो प्लांट्स में बेसिकली ये होता है ट्रांसपीरेशन होता है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो जो मतलब कि मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो दैट इज अबाउट द फ्रॉम द ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसपीरेशन. ओके. सो 88 क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इन द सेल. सेल्स में जो मतलब कि इसेंशियल कंपोनेंट कौन सा पाए जाते हैं? सो फर्स्ट इज ए सेज कैल्शियम, सॉरी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो होता ही है. सेकंड सेज मैग्नीशियम, फॉस्फोरस नहीं, जिंक. ओके ओके ओके. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, है ना. थोड़ा बहुत पढ़ो इनके बारे में. डू समथिंग बाय योर सेल्फ ओनली ऑल्सो. डोंट रिलाई एवरीथिंग ऑन द टीचर और एजुकेटर. डू समथिंग बाय योर सेल्फ, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. ओके ओके. सो 89th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डू नॉट हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसमें नहीं होता है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में होता है, एल्गी में नहीं होता, आई थिंक फंगई में आई थिंक. सो हियर वी विल गो विद द ऑप्शन बी, दैट इज फंगई में नहीं होता, यानी कि ये क्लोरोफिल नहीं होता ना, कोई भी पिगमेंट नहीं होता क्लोरोफिल का. सो ये फंगई में नहीं होता, एल्गी में होता है, यस, एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 90 says which one of the following organism ingested
ingested dead organic matters and their digest then digest internally and absorb the nutrients. ये डेफिनेटली ये डेट्रीवोरस होते हैं जो इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं, स्पायरोट्रोपिक होते हैं, इन्हें एक्सक्रीट करते हैं कुछ केमिकल्स वगैरह, फिर जो डिग्रेड हो जाता है वो मतलब कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मतलब एक्सटर्नल बॉडी से बाहर ही हो जाता है ना, डिकम्पोज वगैरह, फिर उसको यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. कीमोट्रोपिक इज बेसिकली रिलेटेड टू केमिकल्स, मतलब कि केमिकल रिएक्शन से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बस. ओके. सो 89 सेज So 91 says which one of the following statement about the ecosystem is correct. कौन सा इकोसिस्टम के बारे में करेक्ट है? इकोसिस्टम्स आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, है ना, नॉट करेक्ट, है ना. तो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं इकोसिस्टम तो मोस्टली, है ना. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हियर. लेट्स मूव टुवर्ड द ऑप्शन बी. न्यूट्रिएंट साइकिल सप्लाईज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, है ना. हाँ, न्यूट्रिएंट साइकिल सप्लाई करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो. एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम्स मोस्टली रिलाई ऑन द सनलाइट्स. या डेफिनेटली इकोसिस्टम सपोर्ट कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. 91 में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 92 सेज द global temperature and CO2 concentration for the last 8 lakh years were deduced mainly from विच वन ऑफ द फॉलोइंग. कौन से के द्वारा जो ग्लोबल टेम्परेचर और CO2 कंसनट्रेशन है ना उसके बारे में पता चलता है. तो बेसिकली मतलब कि कंफ्यूज हो सकते हो आप इन दोनों में, है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल है. माउंटेन पीक और ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल पीक में तो कहीं होगा, वो तो पिघल जाती है आधी बार तो, है ना. फॉसियल फ्यूल्स में भी कहीं होगा, फॉसियल फ्यूल्स में तो कुछ नहीं होगा. आप है ना ये ट्री एनुअल रिंग्स. सो यहाँ पे बेसिकली ट्री एनुअल रिंग्स में क्या होता है ना, जब वाटर मतलब कि कभी ड्रॉट हुआ था, कभी पानी मतलब कि बारिश सही हुई थी, वो वाला पता चलता है इससे, है ना. डार्क और लाइट कलर की जो रिंग्स बन जाती है उसमें, जब तने को काटोगे ना तो यू विल फाइंड डिफरेंट कलर्स ऑफ रिंग्स, यानी कुछ डार्क कलर होता है, फिर लाइट होता है, फिर डार्क कलर, ऐसे होता है ना. सो हियर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट. आई स्कोरिंग इन द ना अटलांटिक सॉरी अंटार्कटिक प्लेटू. ओके. जो आई स्कोर होती है ना उससे पता चल जाता है. सेकेंड इज सेड इन जर्मनी द डेट इन द स्प्रिंग सीजन व्हेन न्यू leaves open on horse chestnut has been recorded every since 1951. Which one of the among the following groups of scientists primarily record such seasonal activities of the plants? So basically you will find taxonomy is naming से related है, physiology is general characteristics से related है, ecology ये environment से related हो गया. तो here you will find the phenologist. So यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट. सो इन दिस सिचुएशन, सो ट्रिक इफ यू वांटेड टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बट आपको कुछ नहीं आता, सो ट्राई करो कि जो ओड वन आउट दिख रहा है, यानी जो अलग दिख रहा है, जो आपने कभी नहीं सुना होगा. बेसिकली यूपीएससी क्या करता है ना कि ऐसे ही कोई ऑप्शन नहीं डालता, देयर इज ए रीजन बिहाइंड दैट. सो उस रीजन को फाइंड करने की जरूरत है नहीं. हियर यू मतलब कि आपको अगर गेस भी करना हो तो जब जो ओड दिख रहा हो ना उसको गेस करो. ओके. मार्क दैट एज राइट क्वेश्चन. ओके. 94 says the ability of corals to make their skeleton primarily depend on which one of the following factors. कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्केलेटन्स प्राइमरी डिपेंड कोरल मतलब की एबिलिटी होती है कोराल्स की, उस पर किस पे डिपेंड करता है? वो बेसिकली सॉल्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. जो वाटर में सॉल्ट होता है ना उसके कंसंट्रेशन पे होता है, मतलब कि अगर सॉल्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर वैसे चेंज हो जाएगा. ओके. सो 95 says the International Botanical Congress held in 1982 proposed that the year 1753 be the reference year for biological nomenclature. It is because उस दिन क्या हुआ था, species plantarum was published in 1953. Okay, हाँ, yes, correct है ना. Option B will be the correct option. Question number 96 says the corporative aggregates of microorganism can form colonies on various surfaces by secreting that is signaling molecules. which of the following phenomena is correct? So basically एक फिल्म बन जाती है उनके ऊपर जिसको हम बायोफिल्म बोलते हैं ना. सो बायोफाइल इज लव एंड बायो, यानी कि इससे जो इट्स रिलेटेड टू द लव बिटवीन द कम्युनिटी, दैट इज बायोलॉजी, दैट इज अबाउट प्लांट्स एंड एवरीथिंग. एंड बायोमास इज द मास दैट इज इन दैट acquired by the gain and the energy. Okay. So question number 97 says which one of the following location is also known for the strange phenomena
बर्ड सुसाइड इज बेसिकली जतिंगा। जतिंगा में क्या होता है ना कि बर्ड्स नाइट में क्या करते हैं कि जो मतलब कि हाउसेज होते हैं उनमें मतलब कि फ्लाई कर जाते हैं और उसके बाद में वो मतलब कि सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाते हैं। बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है ये, बेसिकली है ना, पार्ट ऑफ इंडिया है। ओके, सो 98th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन ए स्पीसीज unique environmental requirement, its role and position in the septial habitat at the given time. So basically क्या पूछ रखा है, mental requirement, its role and position in the septial. So basically role and position is basically known as ecologicalness. Okay, ये environment के basic questions है. You have to know these type of questions in the, if you are really preparing religiously for this examination, that you definitely have knowledge about this. Ecological niche हो गया, biodiversity हो गया, ecosystem हो गया, ecotone हो गया, ये पता होनी चाहिए आपको terms, है ना, basic terms है. You will find in any type of book. Okay, so question number 99 says when Paramecium cordatum and Paramecium aurelia are cultured together under the ideal laboratory conditions, the population of Paracium cordatum may gradually be completely disappeared. Which one of the following laws and principles correctly explain it? कौन सा है जो एक्सप्लेन करता है? सो बेसिकली जो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है ना, ये होता है, ये यहाँ पे ना अप्लाई होता है, जहाँ पे क्या होता है ना कि एक स्पीसीज वो थोड़ी सी मतलब डोमिनेंट दिखाती है, जो मतलब कि बाद में उसी की मतलब की क्वांटिटी बढ़ जाती है उस एरिया में, जो अदर्स है वो डेफिनेटली गोइंग टू बी अफेक्टेड नेगेटिवली. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 100 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डिस प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट इकोसिस्टम डायनामिक्स, है ना, इकोसिस्टम डायनामिक्स को कौन से अफेक्ट करते हैं. सो हियर यू विल फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डिस प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट इकोसिस्टम को कौन से इफेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज होती है जो मेन होती है ना, अगर उनकी है ना मतलब कि अगर नंबर्स कम हो गए या बहुत ज़्यादा हो गए, देन इट विल अफेक्ट द इकोसिस्टम डायनामिक्स डिसप्रोपोर्शनेटली. ओके, सो हियर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स डू समथिंग, कुछ और करते हैं थोड़ा बहुत, है ना. सो हियर ऑप्शन, let's move towards the question number 101. Which one of the following, okay, let's end it here, है ना. So for today that's enough. Okay.